آج پوری دنیا ایک ایسی جنگ کو دیکھ رہی ہے کہ جس نے مشرق وسطی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آگ، بارود، میزائلوں کی گھن گرج اور فضاؤں میں اڑتے ڈرون۔ لیکن اس ساری تباہی کے بیچ ایک ایسا ملک کھڑا ہے کہ جو اپنے آپ کو شکست خوردہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ملک ہے ایران۔ ایک ایسا ملک جو پابندیوں کے باوجود عالمی دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے اور بار بار دے رہا ہے کہ ہم جھکنے والوں میں سے ہرگز نہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کھڑا ہے اسرائیل اور اس کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا ایران واقعی تنہا ہے؟ اور کیا اس جنگ میں ایران نے واقعی دنیا کو حیران کر دیا ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ کیسے شروع ہوئی، یعنی وجہ کیا بنی، اور ایران نے کیسے جواب دیا۔ کون سے میزائل اس جنگ میں استعمال ہوئے، اور کیا یہ جنگ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں طارق بزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیکٹیو 92۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایران کی حساس عسکری مراکز کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کا ہدف تھا ایران کے میزائل پروگرامز، جوہری تنصیبات اور فوجی کمانڈ سینٹرز۔ دنیا کو لگا شاید ایران اب دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند گھنٹوں بعد ہی ایران کی فوج، اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپ نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ایران پر حملہ کرے گا اس کی سرزمین محفوظ نہیں رہے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایران نے یکے بعد دیگرے بہت سے ممالک میں ایئر بیسز پر اٹیکس کیے، اور یہ ایئر بیسز کوئی عام ایئر بیسز نہیں تھیں، بلکہ یہ تمام کی تمام ایئر بیسز امریکہ کی تھیں۔ یعنی امریکہ ایئر بیسز کو استعمال کر کے ایران پر کسی بھی وقت سٹرائک کر سکتا تھا، اور ایران کا یہ وعدہ تھا کہ کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ نہیں کیا جائے گا یا اس کی تنصیبات کو نہیں چھیڑا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف ان اڈوں، ان بیسز اور ان ہوٹلز کو نشانہ بنایا جائے گا جہاں پر امریکی موجود ہیں۔ اسی لیے CIA کا ہیڈ کوارٹر ہو، دبئی میں امریکی تنصیبات ہوں یا پھر قطر میں، ان تمام کو نشانہ بنایا، اور ایران نے بتا دیا کہ وہ بہت ہی دور مار کرنے والے میزائلز رکھتا ہے۔ یہ میزائلوں کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایران کا تاریخی جوابی حملہ۔ ایران نے پہلی بار براہ راست سینکڑوں میزائل ڈرون داغ دیے۔ یہ حملے صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا، اور خاص طور پر العبید ایئر بیس، الاسد ایئر بیس۔ فضا میں اڑتے میزائل اور آسمان کو چیرتی آگ کی لکیریں، یہ منظر مشرق وسطی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور واقعی ایران نے سب کو حیران کر دیا۔ ایران نے واضح پیغام دے دیا کہ اگر ہمارے شہر پر بم برسیں گے تو دشمن کی سرزمین بھی محفوظ ہرگز نہیں رہے گی۔ دنیا اکثر ایران کو صرف پابندیوں کا شکار ملک سمجھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس دنیا کے خطرناک ترین میزائل پروگرامز میں سے ایک موجود ہے۔ ان میں شامل ہے فتح 110 میزائل، سجیل میزائل، شہاب 3 میزائل۔ یہ میزائل ہزاروں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطی میں ایران کو ایک بڑی عسکری طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہی۔ ایران کے اتحادی بھی میدان میں اتر آئے، اور ایران کے اتحادیوں میں لبنان، فلسطین اور یمن شامل ہیں۔ ان گروپس نے مختلف محاذوں پر اسرائیل کے حملے کے خلاف حملے شروع کر دیے، جس کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ دنیا میں خوف پھیل گیا، اور تیل کا بڑا بحران سر اٹھانے لگا۔ اس جنگ کے اثرات مشرق وسطی تک محدود نہیں رہے، اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ جیسے ہی ایران پر حملہ ہوگا، ایران چند ہی دنوں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ لیکن اب مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بہت لمبی چل سکتی ہے، اور ایران کہتا ہے کہ وہ اس جنگ کو لمبے عرصے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کے پاس موجود ہیں دور مار کرنے والے میزائل، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل ڈرون۔ جتنے بھی ایئر بیسز کو تباہ کیا گیا، وہاں پر میزائل سے پہلے ڈرون میزائل سے اٹیک کیا گیا، اور وہاں کا ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنا دیا گیا۔ دنیا کا مہنگا ترین ڈیفنس سسٹم جو امریکہ کے پاس تھا، العبید ایئر بیس کو اٹیک کیا گیا، اور میزائل سسٹم کو روکنے کے لیے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا گیا، جو کہ $1.5 ارب مالیت کا سسٹم تھا۔ اب دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں، کیونکہ اب یہ جنگ خلیج تک پھیل چکی ہے، اور آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے۔
गो कि ट्रंप ने यह धमकी दी है कि आबनाए हुर्मुज को वो बहुत जल्द खुलवा लेगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता क्योंकि आबनाए हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल ईरान का है। ईरानी बहरी बेड़े वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ ईरान ने खुदकुश कश्तियां भी तैयार कर रखी हैं और ईरान हर हमले का भरपूर जवाब देने के लिए आबनाए हुर्मुज पर भी तैयार बैठा है। दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और अगर आबनाए हुर्मुज बंद रहा तो पूरी दुनिया माशी बहरान का शिकार हो सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ईरान झुकेगा या ईरान झुकने वाला है, या खामनाई के बाद इस पूरे सिस्टम को धचका लगा या फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। खामनाई के बाद ईरानी कौम ने खुद को यकजा किया, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और इसके साथ साथ अपनी मौजूदा लीडरशिप को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़ी है। और जब कौमें लीडरशिप के साथ खड़ी हो जाती हैं तो फिर उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जंग फौज नहीं बल्कि कौम लड़ा करती है और ईरानी कौम ने यह साबित कर दिया कि वो जंग के लिए तैयार है। इसी सूरत हाल को देखकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार मदद की अपील कर रहे हैं। कभी कुर्दों से मदद मांगते हैं तो कभी बरतानिया के सामने मदद के लिए हाथ फैलाते हैं, लेकिन बरतानिया की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ईरान कुर्दों से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। अभी खबर यह आई है कि कुर्दों की हजारों की तादाद में फौज इस वक्त ईरान में दाखिल हो रही है, लेकिन ईरान दूसरी जानिब डटा हुआ है। ईरान कहता है कि फजाई हमले हों, जमीनी हों या फिर समंदरी, तमाम हुदूद की हिफाजत करना हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम आबनाए हुर्मुज पर भी अमेरिका को जवाब देंगे और इसराइल के तमाम शहरों को मलियामेट कर देंगे। उनका कहना है कि अभी तो वो मिसाइल छोड़ा ही नहीं जो कि सुपरसोनिक है और जो 400 सेकंड में पूरा तिल अबीब तबाह कर सकता है। ईरान की क़यादत बार बार एक पैगाम देती रही। अल खमैनी बार बार कहते रहे कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के अवाम भी सड़कों पर निकल आए और वो एक ही नारा लगा रहे थे कि हम झुकेंगे नहीं। क्या यह जंग आलमी जंग बन सकती है? सबसे बड़ा सवाल। दुनिया के कई माहिरीन का कहना है कि अगर यह जंग मजीद फैलती है तो इसमें रशिया और चाइना भी शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो जंग सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद हरगिज नहीं रहेगी, बल्कि एक आलमी जंग का आगाज भी हो सकता है। और इस आलमी जंग के आगाज में बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि एक तरफ ईरान, रशिया और चाइना खड़े हो जाएंगे और जब चाइना इस जंग में कूदेगा तो फिर पाकिस्तान किसी तौर पीछे नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली इंतहाई शानदार तरीके से तरतीब दी है। एक जानिब वो अफगानिस्तान से नबर्द आजमा है तो दूसरी जानिब भारत पर भी नजर रखे हुए है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसकी नाकामी के बाद क्या भारत दोबारा कोई शरारत कर सकता है, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत मक्कार है, लेकिन पाक फौज उसके इरादों को, उसकी नीयत को और उसके फतूर को अच्छी तरह जानती है। इसलिए हर महाज पर कामयाबी से लड़ने के लिए जमा मर्द पाक फौज के बिल्कुल तैयार खड़े हैं। एक यहूदी तज्जियाकार ने कहा कि जब ईरान खलीज फारस की हाशिया ममालिक में अमेरिका को रास्ते से हटा देगा तो असल मुसीबत इसराइल के लिए शुरू होगी। जैसे ही ईरान अमेरिका के मुकाबिल महाज को मजबूत कर लेगा और अमेरिकी अफवाज को रास्ते से हटा देगा, इसराइल की हकीकी मुश्किलात तभी शुरू होंगी। और जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ कुव्वतों की तरतीब और तैयारी है, एक इब्तदाई मरहला। ये खौफनाक तरीन डरावना ख्वाब है, ना पहचाना जा सकेगा और ना ही इसे रोका जा सकेगा, हत्ता के एटमी हथियारों से भी नहीं। और जल्द ही अमेरिका और इसराइल के पास अमली तौर पर कोई मौसर मिसाइल दिफाई निज़ाम बाकी नहीं रहेगा, ना कोई रेडार और ना कोई रोकने वाला निज़ाम। यानी अमेरिका भी इसराइल को इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब तुर्किया ने एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम दे दिया है। तुर्किया की वजारत दिफा के मुताबिक वो ईरानी कुर्द अलहदगी पसंद ग्रुप्स और कुमाला की नकलो हरकत पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ईरान में अलहदगी की कोई भी कोशिश न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि तुर्किया और वसीतर खित्ते के लिए भी तशवीश का बाइस है। लास्ट टाइम अवामी मुजाहिरों में तुर्किया ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी, जिस वजह से ईरानी पासदारान इनकलाब ने कई दहशतगर्दों को ऑपरेशन के जरिए मार दिया था। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन ने इसराइली खुफिया प्लान को भी बेनकाब कर दिया है, जिसमें एक मजहबी यहूदी के क्लिप का हवाला भी दिया गया है। उनका कहना है कि मस्जिद अक्सा को मिसाइल मारकर गिराया जाएगा, फिर वहां यहूदी इबादत खाना बनाया जाएगा और इल्जाम लगाया जाएगा कि मस्जिद अक्सा पर ईरान ने मिसाइल दाग दिया है। इस तरह ईरान और फलस्तीन के दरमियान
जंग शुरू होगी, इख्तलाफात शुरू होंगे और मुसलमान जब एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो उसी वक्त इसराइल या अमेरिका ईरान को टुकड़ों में बांट देगा और उसमें कठपुतली हुकूमत कायम कर पाएगा। सबसे बड़ा सवाल है नाजरीन कि क्या ईरान में मौजूद इस वक्त की लीडरशिप क्या अवामी लीडरशिप नहीं है? अवाम का ठाठे मारता समंदर और उनके हक में एहतजाज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अवाम इस लीडरशिप से मुतमईन है और ट्रंप का कहना है कि यहां पर रिजीम चेंज होना चाहिए क्योंकि अवाम खुश नहीं है। क्या अवाम वाकई खुश नहीं है? और क्या अवाम को खुश रखना ट्रंप की जिम्मेदारी है या कि उस मौजूदा हुकूमती सेटअप की जो इस वक्त ईरान में मौजूद है? डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बहाने बनाता है और बहाने बनाकर अटैक करता है। इराक की 2003 की वॉर ले लीजिए, सिर्फ बताया गया कि यहां पर तनसीबात हैं, यहां पर आधी असला है, यहां पर पूरी दुनिया को नेस्तो नाबूद करने के लिए असलहे की तैयारी की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं निकला। और फिर सदर सद्दाम हुसैन के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वो यही चाहता था कि ईरान भी इसी तरह घुटने टेक दे और रिजीम चेंज हो, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इसराइल का यह ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। और अगर इस जंग में रशिया और चाइना शामिल हो गए तो यह जंग मशरिक वुस्ता तक महदूद हरगिज नहीं रहेगी, बल्कि यह जंग फैलती चली जाएगी और फिर यह वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगी, जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और दीगर मुमालिक इत्तेहादी बनकर मुकाबला करेंगे यूरोपीय कंट्रीज का, यानी इसराइल और इसके साथ साथ अमेरिका का। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी कौमों की गैरत, हौसला, उनका ईमान और जज्बा जंग लड़ता है। और आज ईरान यही पैगाम दे रहा है कि हम कमजोर तो हो सकते हैं लेकिन खामोश नहीं रह सकते। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या यह जंग रुक जाएगी या यह मशरिक वुस्ता एक बहुत बड़े तूफान की जानिब बढ़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।